forgot to save that whiteboard screen, so I should write it again. So please give me 1 minute. Components, condition, and last one, reactance. So combination is RC capacitive. Okay. So what we have seen that this is gate to drain. So gate to drain and gate to source. So here we have the C and R. The condition was XC is very greater than R. In that case, we have C equivalent GM RC. In the second case, if we have RC इंडक्टिव, सो अभी क्या होगा, गेट और ड्रेन के अक्रॉस वी हैव आर एंड गेट और सोर्स के अक्रॉस वी हैव सी. इन दैट केस आर इज वेरी ग्रेटर देन XC. So in this case, C equivalent you will get as RC by GM. In the next case, when RL inductive, okay, so at the gate drain you will have the component as L, and here the component as R. In this case you will have XL is very greater than R. In this case, sorry, यहाँ पर जो मिलेगा the reactance, what you will get is the equivalent reactance as, so here you will get L equivalent is equal to L by GMR, and in the next case RL capacitance, capacitive. So you have R and L component, and here R is very greater than XL, and then you will get C equivalent is equal to what? RGR, sorry. So let me check this whether I am right or wrong. So in the case when you will have RL, in that case you will have at gate to drain you have R, and gate to source you have L. In that case R is greater than L, and C equivalent is equal to GM L by R. Okay, so based on these values, so based on the combination what you will have, you can change the reactance value, whether it is inductive or capacitive. Okay, so this is all about the FET reactance modulator. I have not saved that. So what we have seen now, so based on the value of the inductive component, based on the value of the inductive component which is present over here, so यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा है वो एक reactance value, वो reactance value डिपेंड कर रहा है कि हम उस फेट के अक्रॉस क्या कंपोनेंट्स लगाए हैं. ठीक है, एक्चुअली हमारा मोटो क्या है, यहाँ पर मोटो है कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है डिफरेंट. सो रिएक्टेंस वैल्यू आएगा, उस रिएक्टेंस वैल्यू को चेंज करके हम इस पूरे सर्किट का रिएक्टेंस चेंज करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिलता है. ओके, so let us take an example. So one problem.
So that problem is basically based on the indirect method which we have seen yesterday. Yeah. So the question is, an FM signal is given by what? ST is equal to 10 cos of 2 pi 10 to the power 6t plus 0.4 sine 2 pi into 10 to the power 3t. Okay, is passing through. So I am writing the whole question is passing through cascaded frequency multiplier. Okay, whose multiply constant are 2 and 5, okay, respectively. Find okay, select all the parameters of FM at the end of each multiplier. Okay, so yesterday we have seen the indirect modulation method. So in that indirect modulation method, what we have generated. indirect method में हमने क्या किया था, कोई बता सकते हो? indirect method में हमने क्या किया था, कोई बता सकते हो? Am I audible? Am I audible? Am I audible? किसी की आवाज नहीं आ रही है? Yes sir. Okay. Yes sir. So कोई बता सकते हो कि हमने जो कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था, उस इनडायरेक्ट मेथड में क्या था? कोई दोबारा देखे नहीं क्या था? The block diagram. या ब्लॉक डायग्राम था. To get the frequency. या तो इनडायरेक्ट Yes, मेथड, sir. इनडायरेक्ट जो बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक जो मेथड था, उस मेथड में था क्या? Sir, square law modulator. हाँ, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर था. वहां पर हमने बेसिकली किया From an frequency modulator. After that we WBFM. हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, नैरो बैंड एफएम जनरेट किया था और उसे हमने वाइड बैंड एफएम में कन्वर्ट किया था. और इस नैरो बैंड एफएम को जनरेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था? फेज मॉड्यूलेशन का. हमने यहाँ पर क्या किया था? फेज मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करके नैरो बैंड एफएम गेन किया था. आफ्टर दैट ये वाइड बैंड एफएम जो जनरेट किया था, ये वाइड बैंड एफएम जनरेट करने के लिए क्या हुआ था? वाइड बैंड एफएम को जनरेट करने के लिए क्या किया गया था? मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल किया गया था, है ना? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर. हाँ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल किया गया था. क्या करने के लिए? नैरो बैंड एफएम को हम पास किए थे किससे? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास किए थे. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से जब हम पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नैरो बैंड एफएम मिलता है. ठीक है. But sir, हाँ. hello sir.
So, but in NBFM, we multiply with the carrier oscillator. After that, we get WBFM. After that, we use a frequency multiplier. एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का कहने का क्या मतलब है कि हम जस्ट क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बाय यूजिंग स्क्वायर लॉ डिवाइस we are just increasing the spectrum of the frequency so that we will get wide band FM, है ना? तो वहां पर बीच में हमने एक मिक्सर लगाया था. मिक्सर इसलिए लगाया था कि मिक्सर क्या करता है, वो आइदर फ्रीक्वेंसी FC प्लस F0 का एक वैल्यू जनरेट करता है या FC माइनस F0 का एक वैल्यू जनरेट करता है, सो दैट वी विल गेट सम फर्दर, मतलब फ्रीक्वेंसी जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हमें डेविएशन ज्यादा पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रहा है उसे हम डेविएट कर रहे हैं कहाँ, तो FC के साथ और क्या ऐड होगा, FC के साथ डेल्टा F भी ऐड होगा. ठीक है, डेल्टा F क्या है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन है. तो FC प्लस डेल्टा F प्लस F0, जिस जो कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके उसे बढ़ा रहे हैं. तो मिक्सर का जस्ट काम होता है कि हमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना. ओके, और मल्टीप्लायर का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा का टर्म है तो मल्टीप्लायर से पास करने के बाद हमें क्या मिल जाए, कॉस एन थीटा मिल जाए. एन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, कॉस मान लें, कॉस ओमेगा टी है. तो हम जब मल्टीप्लायर से पास करें तो हमें क्या मिले, कॉस एन ओमेगा टी मिले. ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? ओमेगा है 2 पाई एफ. और अगर हम एन ओमेगा कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, 2 पाई एन एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी को एन टाइम्स हम बढ़ा दे रहे हैं. ठीक है, तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द FM using indirect method. We are finding FM indirectly by using PM. Okay, so यहाँ पर क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, an FM signal is given by, so next class का टाइम हो गया क्या? Yes, sir. From 11:30 onwards. ओके ओके, आसिम सर ने शायद 11:40 से शेड्यूल किया है. ठीक है, जो भी है, मैं 2 मिनट और लूंगा. तो FM सिग्नल इज गिवन बाय 10 cos ऑफ दिस. सो हम क्या कर सकते हैं, इस सिग्नल को, हमारे पास FM का एक FM सिग्नल का फॉर्मेट क्या है, A cos 2 pi FCT प्लस बीटा टाइम्स साइन 2 pi FMT. ओके, when we will compare this signal with this signal, we can easily get the value of A. So A is what? AC. That is, this is the amplitude of the carrier signal, FC. So we can get the value of FC here. We can get the value of FM from here. We can get the value of beta, that is modulation index, from here. Okay. So अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे थोड़ा सा, okay, so I am just deleting this. Please give me 1 or 2 more minutes so that I can explain something to you. Okay, so yeah, यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें पासिंग थ्रू कैस्केडेड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, ये जो सिग्नल है FM, ये हमें FM मिला हुआ है, हम इसे कैस्केडेड एम्पलीफायर से पास कर रहे हैं. यहाँ पर 2 मल्टीप्लायर लगा हुआ है. ओके, 2 जो मल्टीप्लायर लगा हुआ है, दोनों का मल्टीप्लिसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है. मल्टीप्लाई कांस्टेंट एक का 2 है और दूसरे मल्टीप्लायर का 5 है. ओके, वी आर पासिंग द FM सिग्नल S of t whatever we have got here. सो मल्टीप्लायर 2 और मल्टीप्लायर 5 का है. तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है आफ्टर 2 सेकेंड, ये जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर 1 है और ये मल्टीप्लायर 2 है. तो इसके बाद, यानी कि इसके बाद हमें क्या मिल रहा है और इसके बाद हमें क्या क्या मिल रहा है. ओके, सो यहाँ पर हमें AC जैसे सारा कुछ मालूम है. आफ्टर द फर्स्ट मल्टीप्लायर से जब सिग्नल पास हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा. AC का वैल्यू क्या रहेगा, AC विल रिमेन अनचेंज, वो 10 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ये 10 ही है. ओके, 10 वोल्ट. FC का वैल्यू में कोई चेंज आएगा? Yes, sir. 2 FC. Yeah, Yes, sir. Yeah, because yesterday I have already give some the in tabular form that FC will become an FC, beta will become n beta, है ना, and delta F becomes
and delta beta. 2, So FC will, sir, but FM is as it is, na here? yeah, FM will be as it is. FM जो है FM वैसे ही का वैसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर FC क्या होगा, FC 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। FC क्या है हमारे पास, FC पहले से क्या है यहाँ पर अवेलेबल 10 to the power 6, 10 to the power 6। तो FC क्या है 10 to the power 6 का मतलब is it 1 megahertz? Yes, sir. Okay, so 1 It megahertz will of FC, तो यहाँ पर FC1 कितना हो जाएगा, it will be 2 into 1 megahertz. megahertz, that is 2 megahertz. Okay, Yes. in the same way you have to find out the beta 1. In the same way you have to find out the F1. Okay, you have to find out the delta F1. Okay, also you have to find out the total power PT. Also you have to find out the bandwidth. Okay, so ये सारा कुछ आपको यहाँ फर्स्ट मल्टीप्लायर से पास करने के बाद भी निकालना है और सेकंड मल्टीप्लायर से पास करने के बाद भी निकालना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है ये कि जब फर्स्ट मल्टीप्लायर के पहले यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना है 0.4, यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर बीटा का वैल्यू आ रहा है 0.8, है ना। यहाँ पर वैल्यू का आ रहा है 0.8, तो 0.8 आ रहा है मतलब बीटा का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब यहाँ पर नैरो बैंड FM है अभी तक, ठीक है। जब यहाँ पर बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब अभी जब इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 है, तो 8 5 is 40, मतलब बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन दिस केस द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर जो सिग्नल मिलेगा वो वाइड बैंड FM मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ निकालेंगे वो नैरो बैंड FM वाले फॉर्मूला से निकालेंगे और यहाँ पर जो बैंडविड्थ निकालेंगे वो वाइड बैंड FM से निकालेंगे। हमने कार्सन्स रूल देखा है, कार्सन्स रूल में नैरो बैंड FM के लिए बैंडविड्थ कितना आता है वो हमने देखा है और वाइड बैंड FM के लिए बैंडविड्थ कितना आता है वो हमने देखा है, ठीक है। तो वहां से देखकर वो वाली कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल हैव द रिजल्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। Yes, sir. Okay then, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah.